Good morning, students. Now it's all started. If any one of you have any problem related to the lecture or related to the content we are going to discuss, just note down in your notebook and then later we'll discuss that. Make sure everyone that's quite audible. But before proceeding, let's see the information of the lecture. September 17, class 10, subject English, and this is grammar. We are going to practice, and we'll just practice determinants. So far as I am concerned, like you're in the standard 10th, you've been doing this since you started learning English, basically, because determinants are what? Determinants are words that modify nouns. It has like determinants is the new formation of this. Otherwise, it is one of the parts of adjective and articles. In other words, we can say determinants are words that can be used before nouns to determine or to modify their meanings. So this page is a bit, I would say anything, but you should see this. I hope that everyone can view this. You can view this in the this landscape position in your cell phone. That is quite visible. Yes, that's quite. So see students, what we find कि भाई जो डिटर्मिनर्स होते हैं ना वो हमारे नाउन को डिटरमाइन करते हैं, उसके बारे में कुछ बताते हैं, उसको जस्टिफाई करते हैं. देखो दो सब्जेक्ट होते हैं, एक नाउन और एक प्रोनाउन. अल्टीमेटली ये नाउन के साथ होते हैं हमारे सारे के सारे. सो नाउन को ये डिटरमाइन करेंगे, जस्टिफाई करेंगे, उसके बारे में कुछ बताएंगे, एक्सप्लेन करेंगे. दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड डिटर्मिनर्स. डिटरमाइन करते हैं उनको. दो दीज आर द पार्ट्स ऑफ एडजेक्टिव एंड आर्टिकल्स. दोनों को मिलाकर के हमने डिटरमिनर को प्रिपेयर किया है. So let's just begin because definition आप सबके लिए जो है familiar है, because this is the only practice session. Because इसके end में जो है ना, after finishing these few slides are here, उनके बाद जो है ना, जो integrated grammar होती है, 2 slides जो है ना तुम्हारी grammar के ऊपर है, based on this. So just concentrate on this. जो last exercise है, this in that I will involve you people also. आप सब भी जो है उसमें live participate करेंगे. Or let's see how many of you understand this properly and answers the questions. So let me just explain to you. ध्यान रखना चीजों को, note down कर लेना. अगर तुम्हें कोई भी चीज awkward लगे, which you feel that you didn't get in the lecture, later you can ask us when I'll get you chance. So determinants, देखो मैंने अभी बताया nouns को जो है modify करते हैं, nouns के बारे में कुछ बताते हैं, right? So and kinds of nouns with which they are used. किस प्रकार के nouns के साथ ये जो है यूज होते हैं. सबसे बड़ी बात तो ये जानने वाली होती है हमारे लिए कि किस तरह के nouns. अब nouns में क्या पॉइंट्स होते हैं? काउंटेबल भी होते हैं, अनकाउंटेबल भी होते हैं, राइट. सिंगुलर भी होते हैं, ये हमारे प्लूरल भी होते हैं. सो दिस इज व्हाट वी नीड टू जस्टिफाई. So let's see. A and each, everyone, another, and either are used with singular countable nouns. Singular countable nouns means जो बिल्कुल single होते हैं, but these are countable. Countable होते हैं, but singular होते हैं, single के लिए use होते हैं. One out of many, या single की बात कर रहे हैं हम लोग, A and जैसे हम लोग use करते हैं, each, everyone use करते हैं. So उन सब के लिए जो है हम लोग जो है use करते हैं सिंगुलर काउंटेबल नाउन. ये जो हमारे नाउन्स आए हैं सामने, ए एन, ईच, एवरीवन, अनदर एंड ईदर. उसके बाद डोंट रेज योर हैंड चिल्ड्रन. आप सभी को करना है क्या है, जस्ट नीड टू नोट डाउन द डाउट्स इफ यू हैव एनी. अगर तुमको कोई भी डाउट लगता है तो इसको आप जो है नोट डाउन करेंगे अपनी नोटबुक में, and then you'll ask me later. I'll get you chance to ask any doubt and they'll be clarified. Next are this and that. This and that are used with uncountable nouns, oblique singular countable nouns.
अनकाउंटेबल नाउन्स ऑलरेडी डिस्कस्ड हैं कि जिनकी हम गिनती नहीं कर सकते, वजन कर सकते हैं बट गिनती नहीं कर सकते उनकी हम। और सिंगल काउंटेबल नाउन, सिंगल की जो हमने लास्ट बात किया था, दिस बुक, दैट साइकिल, दैट पेन, इस तरह से दिस विल रीड कंटिन्यू फर्दर। These and those are used with uncountable nouns। फिर प्लूरल काउंटेबल नाउन्स, देखो ना उसी द डिफरेंस। These and those जो है अनकाउंटेबल के लिए भी यूज होते हैं, और ये जो है हम लोग यूज करते हैं इनको प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ भी। राइट एवरीवन? इसके बाद आ जाओ, अ लिटिल, अ लॉट ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ, मच आर यूज्ड विद अनकाउंटेबल नाउन्स। ये थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड होते हैं कि स्टूडेंट्स जो है ये जस्टिफाई नहीं कर पाते वेदर द नाउन इज काउंटेबल और अनकाउंटेबल, and they make mistake there. By making mistake, like they are going to lose their marks. इसके बाद next है more, most, a lot of, enough, adequate, some are used with uncountable nouns, plural countable nouns। uncountable nouns के साथ भी use होते हैं ये, और plural countable nouns के साथ भी use होते हैं। So that's what we need to just understand these, how we are going to put forward individually, you'll come to know a few, several, may, both आर यूज्ड विद प्लूरल नाउन्स। और ये जो है ना प्लूरल नाउन्स के साथ यूज होते हैं। आ फ्यू हो गया, फ्यू से रिलेटेड जो भी है, सेवरल से रिलेटेड, मैनी, बहुत, ये सारे के सारे प्लूरल नाउन्स के साथ जाएंगे। उसके बाद आता है दस, द, जो कि डेफिनेट आर्टिकल है, सम, एनी, माई, हर, योर, आर, देयर, इट्स, विच, हुज, व्हाट आर यूज्ड विद एनी type of noun. Now this is very complicated point. There sometimes we feel a bit in a dilemma where to put these sorts of determinants. So you get there with any type of noun, you can use this. Though you just need to practice a bit, which will help you a lot. So let's see. Let's start from the starting this articles. देखो मैंने ऑलरेडी आप सबको बताया है डिटर्मिनर्स के टू पार्ट्स होते हैं, आर्टिकल्स एंड सम ऑफ द एडजेक्टिव्स। सो आर्टिकल्स का तो सबको पता है, ए एंड द। आर्टिकल्स आर यूज्ड बिफोर नाउन्स। देखो आर्टिकल जो है ना नाउन से पहले यूज होते हैं बेसिकली। आ इज यूज्ड बिफोर अ नाउन स्टार्टिंग विद अ कॉन्सोनेंट साउंड, एंड एन इज यूज्ड बिफोर अ स्टार्टिंग विद अ वॉवल साउंड। And that is used before singular countable nouns, plural countable nouns and uncountable nouns. That means किसी भी प्रकार का किसी भी तरह का कोई भी नाउन हो, दा को यूज किया जा सकता है, बट उसके सम सर्टेन रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं। यूज ऑफ इंडेफिनिट आर्टिकल्स देख लेते हैं हम लोग। इंडेफिनिट आर्टिकल्स जो हमारे होते हैं ए एंड एन, उनको हम लोग कैसे यूज करते हैं, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यूज ऑफ इंडेफिनिट आर्टिकल्स ए एंड एन। is used before a noun beginning with a consonant sound। देखो बच्चों इसको ध्यान में रखना है, हमें वर्ड को न देख के ना, लिटरली वर्ड को न देख के हमें उसके साउंड को जस्टिफाई करना होता है। दैट मीन्स वी नीड टू जस्टिफाई इट्स साउंड। विल गेट दिस। सो कॉन्सोनेंट से पहले जैसे अ वुमन, अ होर्स, अ यूनिवर्सिटी, सिंगुलर काउंटेबल नाउन जो कि एक को डिनोट कर सकता है, उसके लिए हम लोग इसको यूज करते हैं, एक सिंगुलर। और n is used before a noun beginning with a vowel sound। vowel sound means उसका sound vowel का होना चाहिए। a e i o u जो हमारे vowels होते हैं, this we get there, that we need to understand। we are just looking for this vowel sounding the words basically, like an orange, an egg, an elephant, an r. This is all we did this, though it's a simple practice, like you're just revising the things. Here, orange, egg, elephant, and are words beginning with the vowel sound. Though there is a bit difference, एक थोड़ा सा difference रहता है that we need to understand how to use a and n. The use of a and n is determined by sound। वो already discuss हम लोग कर रहे हैं, sound से determine होते हैं। The following words begin with the vowel but not with the vowel sound। vowel word से तो शुरू हैं, लेकिन उनका जो sound है that is not vowel। यूनिक, यू जो है it's a vowel word letter basically। यू हमारा vowel letter है, लेकिन उसका जो sound है ना that's consonant sound। a unique thing, a 1 rupee coin, a European, a unicorn, a university, a useful thing, a unicorn। Now you get this, like there is a letter of this vowel letter, but
when it comes to see the sound, it doesn't produce the sound of wall basically. So here I is used. On the other hand, अगर हम दूसरी तरफ देखते हैं, with the following words n is used although they begin with the consonant. लेकिन कुछ ऐसे words हैं जो consonant letter से शुरू होते हैं but उनका जो sound है वो vowel होता है. NR, an honest man, and here to the tone NMCA. Here the sound is the criterion to decide whether AN will be used. So बच्चों को इस बात को समझना, आपको ये जस्टिफाई करना है कि N को कहाँ यूज करना है और A को कहाँ यूज करना है. That is only determined by the sound of the word. जिस साउंड को आप मॉडिफाई कर रहे हो, रिप्रेजेंट कर रहे हो, उसके लिए आपको ए एन यूज करना है. दो है ये दोनों के दोनों सिंगुलर काउंटेबल नाउन, बट लगाना कौन सा है, ए और एन, दैट इज टू बी टेकन वेरी सीरियसली. लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड. यूज ऑफ डेफिनेट आर्टिकल द. अब ये जो हमारा डेफिनेट आर्टिकल है द, इसको हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं. देखो बच्चों, उसमें कई चीजें इस तरह से मेंशन होती हैं कि हमें ये पता होना चाहिए. अब द आर्टिकल को जो है हम लोग कहीं भी यूज कर सकते हैं, काउंटेबल नाउन के साथ भी, अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी. काउंटेबल के दो पार्ट होते हैं, सिंगुलर काउंटेबल नाउन और प्लूरल काउंटेबल नाउन. इसको जो है ना कहीं पर भी यूज किया जा सकता है. अनकाउंटेबल नाउन्स डू नॉट हैव प्लूरल फॉर्म्स. हालांकि अनकाउंटेबल नाउन्स की प्लूरल फॉर्म्स नहीं है, बट काउंटेबल नाउन्स की तो हैं. द इज यूज्ड व्हाइल टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर पर्सन और थिंग. देखो एक पॉइंट समझ लेना, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. जब आप किसी भी नाउन को पर्टिकुलराइज करते हो, when you particularize a particular noun in the situation or the sentence, जो सेंटेंस आप लोग बोलने वाले हो या लिख रहे हो या लिखने वाले हो, अगर उस सेंटेंस के अंदर किसी भी पर्टिकुलर नाउन को आप पर्टिकुलराइज कर रहे हो, उसके बारे में पर्टिकुलरली बता रहे हो, विशेष कर जिसको हम कहते हैं हिंदी में, तो उसके लिए जो है ना, उसको मॉडिफाई करने के लिए हम लोग द यूज करते हैं. राइट चाहे वो काउंटेबल है, चाहे वो अनकाउंटेबल है, चाहे वो प्लूरल है, चाहे वो सिंगुलर है, इट डजंट मैटर. यानी कि दा को आप कहीं भी यूज कर सकते हो, प्रोवाइडेड यू नीड टू कीप वन थिंग इन योर माइंड, दैट यू आर गोइंग टू मेक दैट पर्टिकुलर नाउन इन अ डिफरेंट सेंस, और यू वांट टू पर्टिकुलराइज दैट, कि आप उसको पर्टिकुलराइज कर रहे हो, विशेष कर उसको एक्सप्लेन कर रहे हो. व्हाइल टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर पर्सन और थिंग, एक पर्टिकुलर पर्सन और किसी एक वस्तु के बारे में जब आप बात करते हो, रेफर करते हो उसको, तो द यूज करते हो. लाइक द बुक यू वांट इज नॉट अवेलेबल. अब बुक को जो है उसने पर्टिकुलराइज कर दिया. राइट द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल. अब डॉग को जो है ना उसने पर्टिकुलराइज कर दिया, यानी कि जिस चीज को वो रिप्रेजेंट कर रहा है ना, उसको विशेष कर से एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग द आर्टिकल जो डेफिनेट होता है, डेफिनेट मीन्स ही क्या होता है, पर्टिकुलरली, जिसको पर्टिकुलराइज किया जाता है, तो उसके लिए हम इसको यूज करते हैं. Before some proper names that denote physical features. अभी कुछ proper names है, oceans and seas, the Pacific Ocean, the Arabian Sea, rivers, canals, deserts, groups. These you need to practice yourselves. Though these names are given, with these all sorts of name, you'll have to put definite article the. क्यों? क्योंकि ये सारे के सारे definite होती हैं चीजें. क्योंकि अभी आप rivers की बात करो तो वो definite है. These don't need any type of reference or anything कि आप individually उनको explain कर सको. So you just need to practice these all. That's it, the next one. अब next points हमारे क्या आते हैं? Before the names of religious and mythological books. ये बड़ा important point है बच्चों, एग्जाम्स में भी इसको रिलेट किया जाता है. जो भी हमारी रिलीजियस बुक्स होती हैं, मिथोलॉजिकल बुक्स होती हैं, धार्मिक जो ग्रंथ होते हैं, उन सब को लेकर के हम लोग द यूज करते हैं. द वेदास, द पुराणास, द महाभारत, लाइक दिस. बिफोर द नेम्स ऑफ थिंग्स व्हिच आर यूनिक और वन ऑफ देयर काइंड. एक ही तरह की एक ही चीज होती है. जैसे सन है, सन का कोई दूसरा ऑल्टरनेटिव नहीं है. मून है, पैसिफिक ओशियन है, it can be anything. A few examples have been presented before you, though you need to take care of the next one. Acha, before the proper nouns, that is qualified by an adjective or a defining adjectival clause. The great Caesar, the kind of the king of Rome, द मिस्टर वर्मा whom you met. यानी कि आप जो है ना इन सब को पर्टिकुलराइज कर रहे हो. डिफाइनिंग एडजेक्टिवल क्लोज, यानी कि एक एडजेक्टिवल क्लोज को भी आप जब डिफाइन करते हो,
There also you just take the help of the definite article. With superlative degrees, this is revision, just practicing. अब superlative degree के साथ हमेशा the आता है. This is the worst performance I've ever seen. With ordinals, ordinals हमारे दो तरह के adjectives होते हैं बच्चों, cardinal and ordinal, right? Cardinal 1 2 3 4 or ordinal first second third fourth fifth sixth, like this. So he was the first man to walk on the moon. यानी कि जब भी आपको सेंटेंस के अंदर ऑर्डिनल्स मिलेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेवंथ, उन सब से पहले हम लोग द यूज करते हैं. Now before musical instruments, he can play the tabla very well. Musical instruments कोई भी आप ले सकते हो. Before an adjective, when the noun is understood. Now you see, the rich always exploit the poor. Here the word people is understood. यानी कि जो पीपल हैं वो अंडरस्टूड है यहाँ पर. यानी कि जब आप कभी भी कुछ ऐसे एडजेक्टिव को यूज करोगे जिसका मीनिंग अंडरस्टूड होता है, उस एडजेक्टिव से पहले अगर आप द लगा देते हो, सो दैट गिव्स द प्लूरल सेंस. द रिच का मीन्स होता है वो अमीर लोग, और द पुअर मीन्स वो गरीब लोग. सो उस एडजेक्टिव के सामने जो कि एक स्पेसिफिक बात को बता रहा है, स्पेसिफिक कम्युनिटी या सोसाइटी को रेफर कर रहा है, तो अगर दा लगाते हैं, सो इट गिव्स द सेंस ऑफ इट्स प्लूरल मीनिंग. एज एन एडवर्ब विद कंपैरेटिव्स. अब कंपैरेटिव्स में वर्ब एडवर्ब के साथ भी हम द यूज करते हैं. द मोर मनी वी हैव द मोर वी वांट. ये हिंदी मीनिंग होता है बच्चों इसका जितना उतना, कि द मोर मनी वी हैव, जितनी मनी हमारे पास है, द मोर वी वांट, उतना ही ज्यादा हम चाहते हैं, जितना उतना हम इसको बोलते हैं. कंपैरेटिव फॉर्म में हम इसको लेते हैं, राइट? सो दोनों सेंटेंसेस में हम लोग द यूज करते हैं, दोनों मोर से पहले. This is the adverbial point. Now let's see the next one. Demonstrative adjectives. अब see now, demonstrative adjectives भी जो है हमारे determinants का part होते हैं, right? This, that, these, those. देखो ये दिखने में बड़े इजी लगेंगे तुम लोगों को, बट कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जहां पर तुम लोग मिस्टेक्स क्रिएट कर देते हो. दैट की अगर बात करें, इन केस ऑफ प्लूरल, those, it is used to avoid the repetition of the preceding nouns. अब ये पॉइंट एक ऐसा है जब आप सिंगुलर काउंटेबल नाउन को जो है रिपीट नहीं करना चाहते हो सेंटेंस के अंदर, तो वहां पर हम लोग दैट यूज करते हैं. अदरवाइज तो तुम सबको पता है दैट एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, देयर का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है. दैट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. बट ये एक जो मीनिंग है, ये रेपिटेशन को अवॉइड करने के लिए, माई बैट इज बेटर देन दैट ऑफ माई फ्रेंड. अब दैट जो है ना यहाँ पर, वो किसको रेफर कर रहा है? दैट इज रेफरिंग हियर, जो दोस्त का बैट है ना, उसके बैट से जो है मेरा बैट जो है अच्छा है. माई बैट इज बेटर देन दैट ऑफ, ये दैट ऑफ मीन्स मेरे फ्रेंड का जो बैट है, यानी कि बैट ऑलरेडी एक बार आ गया है तो वो उसको रिपीट नहीं करना चाहता, इसलिए उसने लगा दिया दैट ऑफ. माई बैट इज बेटर देन दैट ऑफ माई फ्रेंड. इसलिए जो है इस सेंस में अब क्या होता है, एग्जामिनर क्या करता है, दैट ऑफ की जगह दोज ऑफ लगा देगा, दीज ऑफ लगा देगा. तो ये तुम्हें सही करना है. यू नीड टू करेक्ट इट, यू नीड टू मेक इट लाइक दो दैट ऑफ, क्योंकि बैट एक सिंगुलर है, तो सिंगुलर के लिए हमें दैट लगाना. अगर प्लूरल होता ना, बैट्स हो जाता, माई बैट्स आर, तो वहां पर दोज ऑफ आता, अदरवाइज तो दैट आएगा. सो रिमेंबर दिस, आर सोल्जर्स आर बेटर इक्विप्ड देन दोज ऑफ पाकिस्तान. अब सोल्जर्स प्लूरल है तो हम प्लूरल डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव यूज कर रहे हैं, दोज, राइट? हम यहाँ पर दैट नहीं लगा सकते. सो रिमेंबर दिस, यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड कि सिंगुलर को रेपिटेशन को रोक रहा है ये, या फिर प्लूरल के रेपिटेशन को रोक रहा है ये एडजेक्टिव. सो ये बड़ा क्रिटिकल पॉइंट होता है. सो दिस इज व्हाट यू नीड टू कंसीडर. नेक्स्ट पॉइंट है, इट रेफर्स टू पर्सन और थिंग फार फ्रॉम द स्पीकर. जो चीज हमसे थोड़ी दूर है, फार फ्रॉम मीन्स वो कहता है कुछ चीजें जो है ना हमसे थोड़ी दूर है, उनको रेफर करता है. कॉमन सी बात है, अगर किताब तुमसे दूर रखी हुई तो दैट बुक बोलोगे ना. गेट दैट डॉग आउट ऑफ हियर, दोज हाउसेज आर फॉर सेल.
यानी कि चीजें कुछ दूरी पर होने के बाद और जब हम उनको बोलते हैं ना, उनको रेफर करते हैं, सो दैट और दोज यूज करते हैं, दैट इज फॉर सिंगुलर एंड दोज फॉर प्लूरल. दिस इन केस ऑफ प्लूरल दीज, दे सिंगुलर है और इन केस ऑफ प्लूरल हम लोग यूज करते हैं दीज. इट रेफर्स टू पर्सन और थिंग नियर द स्पीकर. जब किसी नजदीकी चीज की बात करते हैं ना, तो वहां पर हम लोग यूज करते हैं दिस और दीज. दिस बुक इज वेरी इंटरेस्टिंग, मेरे पास रखी हुई है, नियर नजदीक है. दीज फ्लावर्स आर वेरी ब्यूटीफुल, और ये फ्लावर्स जो है ना बड़े ही सुंदर हैं. तो इस तरह से जब हम बातें करते हैं, सो दिस और दीज यूज करते हैं. उसके बाद आ जाओ बच्चों क्वांटिफायर्स के अंदर. क्वांटिफायर्स कौन से इस तरह के एडजेक्टिव्स होते हैं, ये इस तरह के डिटर्मिनेंट्स होते हैं. Some, many, a lot of, and a few are examples of quantifiers. Quantifiers can be used in affirmative sentences, questions, requests, or commands with both countable and uncountable nouns. There are some books on the desk. There are some books on the desk. अब देखो ये तुम्हें समझना है, काउंटेबल्स के साथ भी अनकाउंटेबल्स के साथ भी जो क्वांटिफायर्स होते हैं, यानी कि काउंटिंग्स को शो करते हैं. क्वांटिफायर्स मींस जो काउंटिंग्स को दिखाते हैं, गिनती को दिखाते हैं. वो सिंगुलर के साथ भी हम लोग इनको यूज कर सकते हैं, और इनको हम यूज कर सकते हैं प्लूरल्स के साथ भी, अनकाउंटेबल्स के साथ भी, काउंटेबल्स के साथ भी. ये काउंटेबल काउंटिंग्स को भी शो करते हैं और नॉन काउंटिंग्स को भी शो करते हैं. देयर आर सम बुक्स, यहाँ पर तो ये यूज कर रहे हैं बुक को, कुछ बुक्स की बात कर रहे हैं. ही हैज गॉट ओनली फ्यू डॉलर्स, के उसके पास केवल कुछ ही डॉलर्स है. वो ये सारी बातें कर रहे हैं यहाँ पर. वेट अ मिनट स्टूडेंट्स. Okay. Uh, how much money have you got? Now, much is showing here what? It is a, it we aren't getting here. Is the one is talking about the countings. The one is talking about the thing like in a quantity. Means quantity का meaning ये भी नहीं है कि वो उसको weigh करेगा, वजन करेगा. Though it gives the mixed sense. We need to understand here. So how much को denote कर रहा है, quantity को show करने के लिए. There is a large quantity of fish in this river. लार्ज यहाँ पर क्वांटिटी को, अनकाउंटेबल को शो कर रहा है. यहाँ पर देखो क्वांटिटी में शो कर रहा है, मींस व्हेन यू वे दिस. इज गॉट मोर फ्रेंड्स देन हिज सिस्टर. काफी फ्रेंड्स है उसके पास, एक देन हिज सिस्टर, उसकी सिस्टर के अलावा. Some quantifiers can go only with countable nouns. For example, friends, people, cups. Some can go only with uncountable nouns. Sugar, tea, money, advice. देखो भाई ये जो नाउन्स है, कुछ तो जो है काउंटेबल है और कुछ जो है अनकाउंटेबल है. वाइल सम कैन बी यूज्ड एग्जांपल्स ऑफ विद बोथ काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल. लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो काउंटेबल्स के साथ भी जाते हैं और अनकाउंटेबल्स के साथ भी जाते हैं. ओनली विद काउंटेबल के साथ नीचे दिए हुए हैं और विद अनकाउंटेबल्स के साथ भी नीचे दिए हैं. सो इट्स हैविंग पॉज. वीडियो को रोक करके आप इनको रीड आउट कर लेंगे. Use of quantifiers as follows. Now you see a use of few and the few, a little, the little, ये सारे के सारे हम लोग यूज करते हैं. So few, a few and the few. Few emphasize the lack of something. बहुत ही जब कम मात्रा में चीज होती है ना कुछ, उसको few बोलते हैं हम लोग. There are few sweets left in the jar. काउंटिंग के लिए बात करता है ये बेसिकली, यानी कि काउंटेबल्स के लिए यूज होता है. We should be careful not to eat them too quickly because they are almost finished. फ्यू जो है ना, नाम मात्र की कोई चीज होती है उसके लिए यूज होता है. अ फ्यू होता है कुछ जो है. emphasis that something still remains, कुछ बची हुई. We still have a few minutes left before the class. क्लास खत्म होने में कुछ मिनट्स बची हुई हैं, कुछ हैं हमारे पास. Do you have any questions? कुछ हैं तो क्या तुम्हारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं? We still have some time. We should use it. भाई a few जो है ना कुछ को दिखाने के लिए कुछ है बेसिकली. few ना के बराबर है बेसिकली. बिल्कुल राइट. अ फ्यू और द फ्यू जो है हम लोग जो यूज करते हैं, द फ्यू जो है थोड़ी चीजों के लिए सेम.
कुछ में से कुछ बची हुई है, राइट। तो इट इज एज सिमिलर एज लाइक फ्यू, हम इसको लिटिल बिट इसको बोल सकते हैं इस तरह से। द फ्यू मीन्स होता है कुछ चीजों में से लिटिल बिट बची हुई है, द फ्यू थिंग्स आर लेफ्ट, राइट। कुछ एग्जांपल्स नहीं दिए होते, दैट्स व्हाट आई एम लेटिंग यू नो। द फ्यू थिंग्स आर लेफ्ट विद मी, कुछ चीजें मेरे पास बची हुई है, बेसिकली वो कहता है। सो लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल की बात करो, लिटिल एम्फोसिस द लैक ऑफ समथिंग, जैसा कि हमने फ्यू यूज किया था काउंटेबल्स के लिए, लिटिल वैसे ही यूज होता है अनकाउंटेबल्स के लिए। वी हैव लिटिल मनी राइट नाउ, कि हमारे पास कुछ पैसे हैं। वी शुड गो आउट फॉर डिनर अनदर डे, यानी कि हमारे पास कुछ ही पैसे हैं जिससे कि हम डिनर नहीं कर सकते, कम मात्रा में है, बहुत ज्यादा, इसलिए जो लिटिल बोला है। और अगर अ लिटिल आ गया ना तो ठीक, हम जा सकते हैं, इतना है कि हम कुछ कर सकते हैं। अ लिटिल एम्फोसिस that something still remains, के कुछ बचा हुआ है। there's a lot a little ice cream left, who'll eat it, कि थोड़ी सी आइसक्रीम बची हुई है, कौन खाएगा इसे। अगर लिटिल होता ओनली, सो लिटिल का मीनिंग हो गया बहुत ही कम मात्रा में, राइट, मात्रा में। लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन, यूज ऑफ मच एंड मैनी। नाउ यू सी, मच जो है अनकाउंटेबल के यूज होता है, और मैनी जो है काउंटेबल के लिए यूज होता है, राइट, प्लूरल के लिए यूज होता है। I haven't got much change. I have only got a 100 rupees rupee note. Right? Are there many campits near place? Now you see, many जो है countable plural countables के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं। We usually use much and many with interrogative sentences and negative sentences. ये questions के लिए हम लोग यूज करते हैं। Is there much employment in that area? How many eggs have not been used in this cake? कितने, मीन्स काउंटिंग और अनकाउंटिंग की जब हम बात करते हैं बच्चों, दिस वी डिड, दिस इज वेरी इजी। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, यूज ऑफ मोर, लेस एंड फ्यूअर। कंपैरेटिव डिटरमिनर्स हैं जो कंपैरिजन को शो करते हैं, मोर भी, लेस भी और फ्यूअर भी। अब एक एक और देखते हैं क्या कहता है। वी यूज मोर और लेस बिफोर सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन्स बाय एडिंग देन आफ्टर इट, और फॉर एन एडिशनल और लेसर क्वांटिटी ऑफ समथिंग, यानी कि कंपैरिजन के लिए हम यूज करते हैं और इनके बाद जो है हम लोग देन यूज करते हैं। आई डू मोर वर्क देन सुरेश, यानी कंपैरिजन हो गया सुरेश के साथ। प्लीज गिव मी सम मोर सैलेड, जितना दिया ना उसके कंपैरिजन में थोड़ा ज्यादा दो। सतीश डज लेस वर्क देन मी, सतीश जो बहुत कम काम करता है मेरे कंपैरिजन में। आई वॉन्ट लेस सैलेड देन महेश, महेश के कंपैरिजन में कम सैलेड यूज करता हूँ। We use fewer before plural countable nouns to refer to a group of things smaller than another. अब देखो फ्यूवर की भी जो है काउंटेबल के लिए यूज होता है। फ्यूवर स्टूडेंट सक्सेडेड इन पासिंग द लास्ट ईयर, फ्यूवर, लेकिन ये कंपैरिजन में यूज कर रहा है कुछ चीजों के, कुछ स्टूडेंट्स के कंपैरिजन में वो बात कर रहा है। प्लूरल काउंटेबल्स के लिए हम लोग यूज करते हैं लेकिन बहुत कम होते हैं मात्रा में, मीन्स ना के बराबर लगा करके आप इनको चलो, फ्यू का ही पार्ट है ये फ्यूवर। We had fewer computers a year ago, कुछ ही दिवस, ना के बराबर। यूज ऑफ each, every, डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिनर्स हम इनको बोलते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिनर्स मीन्स ये डिस्ट्रीब्यूशन को शो करते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें, वी ईच फॉर, वी यूज ईच फॉर टू और मोर देन टू आइटम्स एंड एवरी फॉर मोर देन टू आइटम्स। Both of these are followed by singular countable nouns और singular verbs. Nouns भी singular होंगे और इनके साथ जो verbs यूज होंगी वो भी singular यूज होंगी। Each of the two boys, देखो, has won the a prize. जिस नाउन के लिए यूज हुए ना वो सिंगुलर है, दो में से एक, वो कहता है each of the two boys, वो कहता है has won a prize. Every student in the school is present today.
यानी कि एक, और वर्ब भी वो इज यूज हुआ एक, यानी कि नाउन को भी रेफर करेगा सिंगुलर को, और ये इसके साथ जो वर्ब हम लोग यूज करेंगे दैट विल आल्सो रिमेन सिंगुलर. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. We use each when the number in the group is limited or definite, but every is used when the number is indefinite or unknown. अब वो कहता है कि जब नंबर जो है इनडेफिनेट है और अननोन है तब भी हम इनको यूज करते हैं. ईच स्टूडेंट इन माई क्लास वॉज प्रमोटेड, कि मेरी क्लास में जितने स्टूडेंट थे ना सबको, यानी कि सबको मीन्स प्रत्येक को जो है प्रमोट कर दिया गया है. एवरी पर्सन इन द वर्ल्ड हैज अ पेरेंट, यानी कि वो जो है हर एक को रेफर कर रहा है वहां पर, प्रत्येक को. यूज ऑफ मोस्ट, सेवरल एंड ऑल. अब मोस्ट का तो सबको पता है, मैक्सिमम, अधिकांश हिंदी में जब मीनिंग लेते हैं वी यूजली यूज मोस्ट विद प्लूरल एंड काउंटेबल नाउन्स. मोस्ट ऑफ द पीपल कैन बी ट्रस्टेड, के मैक्सिमम लोगों को ट्रस्ट किया जा सकता है. मोस्ट ऑफ देम, मोस्ट ऑफ द टाइम आई एम नॉट एट होम, का अधिकांश समय जो मैं घर पे नहीं होता हूँ. We usually use several with plural nouns, but it refers to a number which is not very large, less than most. Most से कम होता है लेकिन होता ज्यादा है थोड़ा सा. most से कम होता है लेकिन वो several people were crushed in the stampede. stampede जो भगदड़ मची उसमें जो है कहता है कई लोग जो हैं क्रश हो गए. several people lost their lives in the tsunami, और कई लोगों ने जो अपनी जिंदगी गंवा दी सुनामी के अंदर. सो दिस व्हाट वी अंडरस्टैंड कि देयर इज थोड़ा सा डिफरेंस है मोस्ट और सेवरल के अंदर. मोस्ट को हम लोग यूज करते हैं अधिकांश, और सेवरल उससे थोड़े से कम पॉइंट के लिए. उसके बाद आ जाओ जी ऑल. अब ऑल एक ऐसा डिटर्मिनर है जो काउंटेबल के साथ भी और अनकाउंटेबल के साथ भी है. ठीक है. ऑल आर गोइंग टू दिल्ली, सारे के सारे दिल्ली जा रहे हैं. ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, और जो चमकती है ना वही चीज सोना सोना नहीं होती है. यूज ऑफ अनदर एंड अदर. अनदर सिंगुलर के लिए यूज होता है और अदर जो है प्लूरल के लिए यूज होता है. हम लोग इसको यूज करते हैं. अदर सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है. राइट. सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स वेयर एज अदर कैन बी यूज्ड विद सिंगुलर काउंटेबल, प्लूरल काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल. जिस तरह से दा को यूज किया था ना किसी भी नाउन के साथ, अदर को ऐसे हम लोग यूज कर सकते हैं. ब्रिंग मी अनदर नाइफ एज दिस वन इज ब्लंट. जो ये है ये ब्लंट हो चुका है. ब्लंट मीन्स नॉट शार्प, opposite of the sharp. I would prefer the other house, the other students, or most than most others. इस तरह से हम लोग जो है इनको यूज कर सकते हैं. अदर तो मीन्स काउंटेबल, अनकाउंटेबल, प्लूरल काउंटेबल, वटेवर, और अनदर सिर्फ सिंगुलर काउंटेबल. यूज ऑफ ईदर एंड नीदर. ईदर मीन्स और नीदर का मीनिंग सेम है बच्चों. ईदर मीन्स वन आउट ऑफ टू, और नीदर मीन्स दो में से एक भी नहीं. नॉट वन आउट ऑफ टू. नॉट वन आउट ऑफ टू मीन्स दो में से एक भी नहीं, और इधर मीन्स दो में से एक. वी यूज ईदर टू रेफर टू थिंग्स, दो चीजों को रेफर करता है, दो में से एक है. और जब नेगेटिव की बात करेंगे तो दो में से एक भी नहीं है. आई डोंट अग्री विद इधर राम और श्याम, विद इधर राम और श्याम. So remember this, students. Neither of the two boys passed the exam. दोनों में से एक भी स्टूडेंट ने जो है एग्जाम को पास नहीं किया है. Let's see the next one. अब possessive होते हैं हमारे. जो possessive means my, your, his, her, its, our, their, etc. तो जब हम इनको शो करते हैं तो ये सारे के सारे possessive adjectives होते हैं. This is your book. That is our beautiful house. Possessive means जो चीजें हमारे पास हैं, हमारी हैं basically. Just you need to stop the video here when you get the video, and then read these all possessive determinants, or you can call adjectives. तो possessives को हम अपनी चीजों को शो करने के लिए, प्रूव करने के लिए यूज करते हैं. This is my book, right? Which is their car. The dog liked its paw. So ये सारा आप लोग स्टडी करेंगे अपने आप. We have less minutes left. So for exercise मैं आपको दिखा रहा हूँ. ये सभी के सभी बच्चे जो है ये एक्सरसाइज आप देख लो, because we have less time. We cannot do it right now.
इसको हम लोग रीड नहीं कर सकते हैं. द फॉलोइंग पैसेज हैज नॉट बीन एडिटेड. There is an error relating to determinants in each line. Write the incorrect word and the correct in your answer sheet as given below. Remember the underline the word that you have supplied. The first one has been done for you. और पहला जो है तुम्हारे लिए कर दिया जा चुका है. राइट अब वो तो हुआ नहीं है. चलो फिर भी मैं जो है तुम्हें बता देता हूं. दैट इज डन. Once there was the man called Hassan. क्या जो ये दा है ये ठीक है? Once there was a man called Hassan. So दा इनकरेक्ट है और द की जगह अ आएगा. दैट विल बी करेक्ट. ये फर्स्ट वन मैं आप सबके लिए कर रहा हूं क्योंकि हमारे पास 1 मिनट बचा है बस. बाकी सब जो है आप अपने आप घर पर करेंगे और इन द नेक्स्ट लेक्चर आई जस्ट क्लैरिफाई यू द डाउट. और ये तुम्हें मिल सकते हैं कल के लेक्चर में भी. लेट्स सी द आंसर्स ऑफ दिस. सो प्रैक्टिस योरसेल्फ. द नेक्स्ट वन इज आल्सो द सेम. एडिट नहीं है, इसको पूरे को अपने आप एडिट करना है. सी हियर, मिस्टर एलिसन गिव मी द ब्रेक. मिस्टर एलिसन गिव मी अ ब्रेक.